লোকসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব প্ৰাক্তন IPS আনন্দ মিশ্ৰাই আৰু বিহাৰৰ বক্সাৰ সমষ্টিত তেওঁ নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বুলি এই মুহূৰ্তত আমি জানিব পাৰিছোঁ। সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰাক্তন IPS গৰাকীয়ে এই কথা জনাইছে যে নিৰ্দলীয়ভাৱে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ অৱতীৰ্ণ হ'ব, তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। বিহাৰৰ বক্সাৰ সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি এই মুহূৰ্তত সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি আনন্দ মিশ্ৰাই জনাইছে। আমি সম্পূৰ্ণ ভাষ্য শুনাম, তাৰ পূৰ্বে খবৰৰ সবিশেষ লৈ আনিছোঁ সবিস্তাৰে। আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আনন্দ মিশ্ৰাই, নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আনন্দ মিশ্ৰাই। সামাজিক মাধ্যমযোগে ঘোষণা কৰিলে প্ৰাক্তন IPS গৰাকীয়ে আৰু বিহাৰৰ বক্সাৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আনন্দ মিশ্ৰাই। আৰু সামাজিক মাধ্যমযোগে তেওঁ জনাইছে যে ৰাইজৰ আহ্বানক মই নেওচিব নোৱাৰিলোঁ আৰু অন্যথা আন এজন আনন্দ মিশ্ৰৰ ৰাজনীতিলৈ কেতিয়াও ঘূৰি নাহিব। মোৰ ওচৰত হেলিকপ্টাৰ উৰুৱাবলৈ ধন নাই আৰু 50খন গাড়ীও নাই প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাবলৈ। 10-15 দিনত আপোনালোকৰ ব্ৰেইন ৱাছ কৰি নিজৰ পক্ষলৈ অনাৰ যাদু নাই। এই মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰদান কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰাই। তেওঁ কৈছে যে উদ্দেশ্য আছে কাম কৰাৰ আৰু জনতাই লগ দিয়ে নে নিদিয়ে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব সকলো। এনেদৰে সামাজিক মাধ্যমযোগে তেওঁ ঘোষণা কৰিছে। প্ৰাক্তন IPS বিষয়াগৰাকীয়ে বিহাৰৰ বক্সাৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বুলি জনাইছে আনন্দ মিশ্ৰাই। লোকসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আনন্দ মিশ্ৰাই সামাজিক মাধ্যমযোগে ঘোষণা কৰিছে প্ৰাক্তন IPS গৰাকীয়ে। আৰু ৰাইজক তেওঁ আহ্বান জনাইছে যে বিহাৰৰ বক্সাৰ সমষ্টিৰ পৰা যিহেতু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব, ৰাইজৰ সমৰ্থন বিচাৰিছে। যিহেতু ৰাইজৰ আহ্বানক তেওঁ নেওচিব নোৱাৰি লোকসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি জনাইছে। আৰু তেওঁৰ সৈতে 50খন গাড়ীও নাই প্ৰচাৰ চলাব, অথবা মোৰ সৈতে হেলিকপ্টাৰ উৰুৱাবলৈও ধন নাই বুলিও তেখেতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু তেওঁৰ সৈতে কেৱল উদ্দেশ্যহে আছে কাম কৰাৰ আৰু জনতাই লগ দিয়ে নে নিদিয়ে তাৰ ওপৰত সকলোবিলাক নিৰ্ভৰ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰাক্তন IPS গৰাকীয়ে। সামাজিক মাধ্যমযোগে যি ঘোষণা কৰিছে, যি ভাষ্য আছে প্ৰাক্তন IPS বিষয়াগৰাকীৰ, আমি এই ভাষ্য শুনাব লৈছোঁ। अब ये जरूर है कि हाँ, मुझसे कोई पूछ रहा है निर्दलीय लड़ेंगे आप, मैं आपको बताऊं, देखिए दिस इज अ डिक्लेरेशन विच आई एम मेकिंग। मैं सबको ये बता रहा हूं कि मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है। मैं सोशल सर्विस में आया हूं, मैं पॉलिटिकल रास्ते से काम करना चाहता हूं। मैं यहाँ पे मन बना लिया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो आप सब जान लीजिए कि यस, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब ये चाहे जिस माध्यम से हो, बट मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये मेरी अंतःकरण की आवाज है, और क्यों लड़ूंगा ये भी आप जान लीजिए। मैं बहुत सालों से यहां पे अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत करके कुछ ना कुछ मैं एक्टिव रहा हूं। लास्ट कुछ महीनों में मैं काफी ज्यादा जुड़ा हूं लोगों से, अपनी बात को व्यक्त किया है, अपने लोगों की बात सुनी है, उनको समझने की कोशिश की और अपनी बात समझाने की कोशिश की। इसमें हम समाज में यानी जनता में और मुझ में एक रिलेशन बिल्डअप हुआ, जिसमें कि काफी सारे भावनाओं का आदान प्रदान हुआ, आशाएं डेवलप हुई, कुछ उम्मीदें जागी, कुछ कमिटमेंट्स बने। और अगर सडनली हम इसी पे काम कर रहे थे कि शायद मेरे विचारधारा के हिसाब से एक पर्टिकुलर पार्टी से मुझे टिकट मिलता और मैं लोगों का सेवा करता और एक बड़े विजन जो देश पे चल रहा है उस विजन को और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने की काबिलियत लेके आया था, और यहाँ पे मैं स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करता पब्लिक इंटरेस्ट में। वो रास्ता नहीं हुआ, लेकिन वो कमिटमेंट तो है। लोगों के साथ जो एक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो भाव जुड़ा है, उसको मैं कैसे छोड़ूं, उसको मैं कैसे दागा देता, उसको मैं कैसे कह दूं कि यार जो बात हुई थी बस बात हुई थी, टिकट पर डिपेंडेंट था मेरा आपके लिए सर्विस ओरिएंटेशन। ये तो गद्दारी होगी ना मुझसे। मैं सिर्फ एक उनके लिए चेहरा हूं, एक नाम हूं, एक बड़े से जो दुकान में जैसे बोर्ड बाहर लगता है तो बोर्ड है। यहां बक्सर का हर एक बंदा MP का इलेक्शन लड़ रहा है आनंद मिश्रा के नाम से। दैट्स इट। तो इस बात से मैं अपील भी करूंगा कि यह बक्सर के सम्मान की लड़ाई है। मैंने जो प्रण किया था, मैंने जो आपसे घूम घूम के जब मिला, जब मैं जो भाव व्यक्त किया था, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। आई एम श्योर कि हमारी बक्सर की जनता भी उससे पीछे नहीं हटेगी। तो ये रहा, इस चैप्टर को मैं क्लोज करना चाहूंगा कि आप ये जान लीजिए कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। इस पे लेके आप दुविधा में ना रहेंगे, भैया आप इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, तो ये चीज को आप ऐसा मत सोचिए कि दुविधा नहीं होना चाहिए कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं कि नहीं लड़ रहा हूं। मैं डेफिनेटली इलेक्शन लड़ रहा हूं, दैट इज फॉर सेटल। सिर्फ फेसबुक
या किसी सोशल मीडिया पे कमेंट में अपना राष्ट्र प्रेम नहीं दिखाता, वो अपना सब कुछ छोड़ के ग्राउंड पे उतरता है अपना काम करने के लिए, अपनी बात को प्रूव करने के लिए, टू वॉक हिज टॉक, जो कहते हैं ना, टू वॉक हिज टॉक, वो उतरता है जमीन पे। वो सारे यंग जनरेशन के लिए नाम पे उतरता है, वो सारे ऐसे पॉजिटिव सोचने वाले लोगों के नाम पे उतरता है, वो सारे ऐसे वेल मीनिंग लोगों के नाम पे उतरता है कि नहीं, हम अगर नहीं बदलेंगे देश को, हम अगर अपनी जवानी को नहीं खपाएंगे जब देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में, तो कौन करेगा? अगर घर का बेटा ही ना आए आगे बढ़ के अपना घर बनाने में, कौन आएगा? और इस बात से, ऐसी बात में अगर किसी को हंसी आती है, किसी को इसमें कोई कॉमिक चीज दिखता है, उसमें मजाक उड़ाना दिखता है, तो आई एम सॉरी टू से ब्रदर सिस्टर, आपको थोड़ा सा और, मुझे लगता है, अपने आप को समेटने की जरूरत है और अच्छे प्रयास को आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। क्या हम ऐसे लोगों को समाज सौंप दें जो कि अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर रखते हैं? अगर हम ऐसा नहीं करना है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हर आदमी को आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं जैसे पहले भी कहा कि मेरे से पहले कोई फेल हुआ हो, से मैं दिखता हूं मैं भी फेल हो गया, सब मेरे बाद कोई और फेल, तो ये मत सोचिए, कभी भी ये मत सोचिए कि सब फेल हो रहे हैं। ये समझिए कि ये सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। बार बार आनंद भैया जिंदाबाद, बार बार मैं कहता हूं, मत बोलो ये आनंद भैया जिंदाबाद, बक्सर की जनता जिंदाबाद। ये क्योंकि लड़ाई बक्सर की जनता की है, ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, किसी पार्टी विशेष की लड़ाई नहीं है, ये बात मुद्दों की नहीं, ये बात सम्मान की है। एज अ एक्स ऑफिसर मैं मुद्दों को समझता हूं, मैं समझता हूं कि एक किस तरह से टीम को साथ लेके हम काम कर सकते हैं। मेरे साथ जो टीम काम किए होंगे, आप उनसे जाके पूछ लीजिए, वॉज आई अ गुड टीम प्लेयर और नॉट, मैं टीम को साथ रख सकता हूं कि नहीं, मैं टीम को एम्पावर कर सकता हूं कि नहीं, मैं टीम को वो रिस्पेक्ट देता हूं या नहीं, या इवन फॉर पब्लिक। हाँ, जो बुरे दो चार होंगे वो तो कंप्लेन करेंगे, एंड दैट इज ओके। पुलिस वाले के साथ दो चार कंप्लेन ना आए तो फिर क्या पुलिसिंग किया आपने, वो होंगे, लेकिन उससे जनरलाइज अगेन नहीं करना। ये दो चार लोग होंगे जिनके प्रॉब्लम्स मैंने जिनको हर्ट किया होगा, इसमें कोई शक नहीं। दो चार लोग ऐसे होंगे जिनके कुछ अपने इलीगल इंटरेस्ट होंगे, जिनको मैंने तकलीफ दी होगी, तो ऐसे भी कुछ लोग दो चार आपको मिले, बट वो दो चार मिलेंगे, क्योंकि समाज में अच्छे लोग ज्यादा हैं, ऐसे दो चार हैं, एंड उनका होना भी जरूरी है। तो आप ये जान के रखें कि बक्सर, अब की बार बक्सर में बक्सर की जनता का सरकार होने जा रहा है। अब की बार ये जान लें कि अब की बार बक्सर के लोगों ने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपनी किस्मत, अपने बच्चों की किस्मत अपने हाथ में ली है। उन्होंने किसी को नहीं देने का डिसाइड किया है। ये डिसाइड किया कि हमारे जो इश्यूज हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हम जो समझते हैं उसी समझ को शेयर कर सके जो उनको रिप्रेजेंट करता है, और वो सिर्फ दिखाने वाली बात ना हो, सच में सेंसिटिविटी हो। और जब मुझ में और हमारे यहाँ के लोगों में, इनको मैं जनता बोलना भी मुझे थोड़ा बाहरीपन लगता है, तो जनता नहीं है मेरे लिए, मेरे लोग हैं, इनके बीच से मैं निकला हूं, इनके बीच से बड़ा। ये पूरा शाहाबाद क्षेत्र हमारा जो है, मैं यहीं का हूं, इसी शाहाबाद की मिट्टी से बना हुआ ये शरीर है, ये आत्मा है, मेरा मनोबल है। और मैं जानता हूं कि ये जनता मेरे साथ खड़ी है, मेरे लोग मेरे साथ खड़े हैं। और बहुत लोगों को लगेगा भैया आपको चढ़ा रहे हैं, आपको उड़ा रहे हैं। अब ये पॉइंट है जहां प्रूफ करेंगे, हमारी जनता प्रूफ करेगी, हमारे लोग प्रूफ करेंगे कि सच में मुझे हवा में चढ़ा रहे थे, या फिर सच में इस जनता में वो बात है। क्योंकि अगर इस बार हम फेल होते हैं, फिर से दूसरा आनंद मिश्रा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये फैसला लेना है हमारी जनता को कि ये फेलियर आनंद मिश्रा का फेलियर नहीं होगा। आनंद मिश्रा अपना करियर बना लेगा, इतना मेरिट तो है उसमें। ये फेलियर हमारी जनता का फेलियर होगा, हमारे क्षेत्र का फेलियर होगा, ये डेमोक्रेसी का फेलियर होगा। जहां पे पब्लिक ने एक चीज चाहा, मांगा, और उसको रिस्पेक्ट अगर नहीं मिला तो उसे पूरा भी नहीं कर पाए, फेल भी हो गए, तो दिस विल बी अ फेलियर फॉर डेमोक्रेसी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब मिले, आप सब सोचें, और किसी तरह के माहौल में ना आप घुल मिल जाएं कि 50 गाड़ी का माहौल देखा तो नहीं है मेरे पास पैसे इतने यार मैं 50 गाड़ी लेके घूम सकूं। अगर आप में से भाई लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, 50 गाड़ियां बनाना चाहते हैं साथ, आज ही आपका स्वागत है ना। आप मेरे साथ आना चाहते हैं, आप एक गांव अडॉप्ट करना चाहते हैं कि उस गांव में मैं आके आपको मैं आप मेरे साथ जुड़ के, मेरे साथ आके आप उस गांव को पूरी तरह से आप समझाना चाहेंगे हमारी बात को, आज ही स्वागत है।